Assalamu alaikum students, welcome to Forward Public School e-learning class 3, subject English A, lesson 2, family values. Students, I'm your teacher Salma Nasrullah and today we are going to do second part of this lesson. We will do the book exercises. Let's start. Students, open your books at page number 14. Come on, exercise number 3. Read the lesson and complete these sentences. We have read the lesson, now we will complete these blanks. Number A. The elder son was a dash help to his father. बड़ा बेटा अपने फादर का क्या था, कितना हेल्पफुल था, ठीक है, उनकी कितनी मदद करता था. Was a great help to his father. The elder son was a great help to his father. बड़ा बेटा अपने फादर का बहुत ही मददगार था, उनकी बहुत केयर करता था. He sold his dash and went away. He sold his share and went away. उसने अपना हिस्सा बेचा और चला गया. ठीक है, ये किसान के छोटे बेटे की बात हो रही है. The younger son dashed his father to work hard. The younger son promised his father to work hard. छोटे बेटे ने अपने फादर से वादा किया कि अब वो बहुत मेहनत करेगा. He learned to dash his family and elders. He learned to respect his family and elders. ठीक है, आखिरकार उसने अपने फैमिली और अपने बड़ों की इज्जत करना सीख लिया. Students, now come on exercise number 4. Mark the right answer from the given choices. The first one has been done for you. Okay, here we have some choices. Number first one is, how many sons did the farmer have? किसान के या फार्मर के कितने बेटे थे? 2, 3, 4, 5. The right answer is 2. Second one is, the younger son of the farmer asked his father for dash. किसान के छोटे बेटे ने अपने फादर से क्या मांगा? किसान के छोटे बेटे ने उनसे क्या मांगा? His house, उनका घर. His farm, उनका खेत. His land, उनकी ज़मीन. His share, उसका हिस्सा. ठीक है, The younger son of the farmer asked his father for his share. किसान के छोटे बेटे ने अपने फादर से अपना हिस्सा मांगा. The younger son enjoyed himself by hosting dash for his friends. Groups, parties, people, villagers. किसान के छोटे बेटे ने अपने फ्रेंड्स के लिए क्या किया? उनके लिए क्या अरेंज किया? पार्टीज. ठीक है, उनकी दावतें की. Fourth one is, who asked for forgiveness at the end? आखिर में किसने माफ़ी मांगी? Younger son, younger sister, elder brother, father. Younger son, छोटे बेटे ने, किसान के छोटे बेटे ने अपने फादर से माफ़ी मांगी. Fifth one is, why did the younger one ask his father for his share? किसान के छोटे बेटे ने अपने फादर से क्यों हिस्सा मांगा? Because he used to play, क्या वो खेलना चाहता था? Because he used to study, क्योंकि वो स्टडी करना चाहता था, पढ़ना चाहता था. Because he was out of home, वो घर से दूर था या दूर जा रहा था. Because he did not like working, क्योंकि उसको काम करना पसंद नहीं था. The right answer is because he did not like working, क्योंकि उसको काम करना पसंद नहीं था फार्म पर, खेत पर. That's why किसान के छोटे बेटे ने अपने फादर से अपना हिस्सा मांगा. Students, come on page number 15. Pronunciation. Silent letters. Exercise number 1 is, underline K and W in each word and pronounce the words. Okay, ये हमारे पास words है, इनमें हमने silent letters को underline करना है. Silent letter means कि जो खामोश letters है. Okay, word में जो खामोश मतलब कि हम उसको लिखते तो है but we don't pronounce that letter. Okay, हम उसको pronounce नहीं करते. ठीक है, ये क्या है? Silent है. Okay, खामोश है. Okay, first one is not. Here K is silent. Okay, K क्या है? Silent है, खामोश है. Not का मतलब क्या है? Not घेरा लगाना. Okay, किसी चीज़ को मतलब कि बांधना. No, K is silent. Wrap. W is silent. ठीक है, रैप का क्या मतलब है? लपेटना. ठीक है, हम गिफ्ट को रैप करते हैं ना. Rock. Here W is silent. Okay, W क्या है? Silent है. Knee. K, देखिए के हम लिखते तो है बट वी डोंट प्रोनाउंस इट. ठीक है, हम प्रोनाउंस नहीं करते, हम इसकी साउंड एन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नी. हेयर के इज साइलेंट.
wrench. Here W is silent. Wrench means मरोड़ना या अचानक किसी चीज़ को खींच लेना. Okay? Students, come on, grammar portion. Pronoun. What's the definition of pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun. Okay? A pronoun is a word used in place of a noun. Pronoun वो word है जिसको हम noun की जगह पर use करते हैं. ठीक है? बार बार repetition करने के बजाय, एक नाम को बार बार लिखने के बजाय या पढ़ने के बजाय we use pronoun. हम क्या use करते हैं? Pronoun. ठीक है? किसी वर्ड, किसी नेम को रिपीट करने के बजाय, टू अवॉइड द रिपीटिशन, वी यूज़ व्हाट? वी यूज़ प्रोनाउंस. ओके, दीज आर प्रोनाउंस. दीज आर सम प्रोनाउंस. सिंगुलर, प्लूरल. आई, मी. वी, और, अस. यू, यू, योर. ही, शी, इट. दे, देम, देयर. ओके, अगर किसी ऐसे में या किसी कंप्रहेंशन वगैरह में कोई नेम आता है, मतलब फॉर एग्जांपल अली. अली इज़ अ गुड बॉय. ठीक है? अब हम बार बार हर सेंटेंस में अली को यूज़ नहीं करेंगे, हम उसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे? ही. ठीक है? ही इज़ अ गुड बॉय. ही रीड्स इन क्लास 3. ओके, these are pronoun. Okay, he, she, it, they, them, these all are what? These all are pronouns. Exercise 1 is complete the following sentences with correct pronouns. Okay, here we have some blanks. A. Shazia is a girl and dash is a Muslim. Look at this sentence. देखिए, शाजिया को हमने एक दफ़ा बस लिख लिया ना, then हम and मीन्स के ये नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस का. यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? प्रोनाउन शी. शाजिया इज़ अ गर्ल, शाजिया एक लड़की है, एंड शी इज़ अ मुस्लिम, और वो मुस्लिम है. She respects dash family. She respects her family. I am her friend. Dash are in the same class. I am her friend. We are in the same class. They do dash work in the morning. They do their work in the morning. My parents help dash in my studies. My parents help me in my studies. We should respect dash parents. We should respect our parents. ठीक है? हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए. Students, come on page number 16. Arrange the following words alphabetically according to the second letter of the word. First two words have been arranged. Okay, ये words है हमारे पास. इन वर्ड्स के सेकेंड लेटर, ये देखिए ज़रा, इन वर्ड्स के सेकेंड लेटर के बेस पर हमने इन वर्ड्स को अरेंज करना है. ठीक है? आप जब ए बी सी इस तरह रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा. देखिए, फर्स्ट वन बॉल. ठीक है? इसका सेकेंड लेटर क्या है? ए. सेकेंड वन इज़ बेयर, BEAR. ठीक है? इसका सेकेंड लेटर क्या है? ई. फर्स्ट वन ए के बाद ई आता है ना. ठीक है? सेकेंड लेटर के बेस पर हम इसको अरेंज कर रहे हैं, तो ए के बाद ई आता है, तो ये वर्ड हमने इसके बाद लिखा है. थर्ड वन बिल. देखिए, AEI. देखिए, ई के बाद फिर आई आता है. वैसे तो मतलब इनके दरमियान में और लेटर्स आते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इनके बाद यही आता है. ठीक है? बिल, ब्लैक, बॉयल, ब्रदर, butter. Understand? Students, come on, exercise number 4th. Mark the right answer from the given choices. First one is choose the word in which K is silent. Okay, kick, knife, keyboard, kitten. इन वर्ड्स में हमने ऐसे वर्ड को चूज़ करना है जिसमें के साइलेंट है. मीन्स कि हम के को लिखेंगे तो, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे नहीं. ठीक है? खामोश होगा वो लेटर, उस वर्ड में खामोश होगा. किक, देखिए इसमें के की साउंड आ रही है. नाइफ नहीं आ रही के की साउंड. कीबोर्ड के की साउंड आ रही है. किटन, इसमें भी के की साउंड आ रही है. सो द बेस्ट चॉइस इज व्हाट? नाइफ. ठीक है? इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? नाइफ. इसमें के साइलेंट है. सेकेंड वन इज चूज द वर्ड इन विच W इज साइलेंट. वुल्फ, विंडो, वाटरमेलन, हु. अब इन वर्ड्स में, इन 3 वर्ड्स में W की साउंड बन रही है, बट इन हु here W is silent. ठीक है? इसको हम who पढ़ेंगे. ओके? थर्ड वन इज a dash is a word used in the place of a noun. ठीक है? वो कौन सा वर्ड है जिसको हम नाउन की जगह पर यूज़ करेंगे? verb, vowel,
pronoun, consonant. Pronoun. The right answer is pronoun. Pronoun is a word used in place of a noun. Fourth one is we should always respect dash family or hers, his, their. We should always respect our family. The right answer is और. ठीक है, सबसे पहले हमें अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी फैमिली की इज्जत करनी चाहिए. फिफ्थ वन इज किरण इज द गर्ल डैश रिस्पेक्ट्स हर एल्डर्स. किरण एक लड़की है जो कि अपने बड़ों की इज्जत करती है. विच, वॉट, हु, हाउ. द राइट आंसर इज हु. किरण एक लड़की है जो कि अपने बड़ों की इज्जत करती है. स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 17. एक्सरसाइज नंबर 5 इज use who, which, where और that in these sentences. ओके, अब इन सेंटेंसेस में हमने इन वर्ड्स को यूज़ करना है. who इज़ द गर्ल. ठीक है, ये who जो है हम people, लोगों के साथ यूज़ करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन के लिए. ओके, who हम लोगों के लिए, people के लिए यूज़ करते हैं. which फॉर थिंग्स. ओके, ये हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, विच थिंग, विच पेंसिल, विच पेन. ओके, ये हम थिंग्स, चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं. वेयर, कहाँ. और दैट इन दीज सेंटेंसेस. दैट मीन्स वो. दैट को हम हु और विच दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज दिस इज़ द बॉय डैश रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स. दिस इज़ द बॉय, ये लड़का है जो कि अपने बड़ों की इज्जत करता है. हु. ही विल वर्क डैश देयर इज शेड. ही विल वर्क वेयर देयर इज शेड. वो वहाँ पर काम करेगा जहाँ पर साया होगा. दिस इज़ द गर्ल डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज. ये लड़की है जिसने पहला इनाम जीता. ठीक है, हु. दिस इज़ माई ब्रदर दैट इज़ यंगर देन मी. ओके, ये मेरा भाई है, ये मुझसे छोटा है. दिस इज़ द एरिया विच वॉज फ्लडेड. ओके, ये इलाका है जो सैलाब ज़दा था. विच वॉज फ्लडेड. फ्लड मीन्स सैलाब. ओके. एक्सरसाइज नंबर 6 इज add es to the following nouns to make plurals. Okay, here we have some words. Brush, brushes. The words which ends with h, x, o, s, we put es to these words. Okay, we put es to those words and we make plural. Okay, इन वर्ड्स को, जिन वर्ड्स में h, x, o, s लास्ट में आता है, इन वर्ड्स में या उन वर्ड्स में हम क्या करते हैं, es पुट करते हैं इनके साथ और इनको हम प्लूरल बनाते हैं. ब्रश, ब्रशेस. बॉक्स, बॉक्सेस. फॉक्स, फॉक्सेस. टैक्स, टैक्सेस. बेंच, बेंचेस. पोटैटो, पोटैटोज. टोमेटो, टोमेटोज. क्लास, classes. Bus, buses. Students, this is the end of part 2 book exercises. We will do written work in the next class. Thank you and Allah Hafiz.